Morning everyone, let's start the class. Today we are going to study about the similar questions that we learned to find the area. We will continue the exercise 8.7 with the question number 6, as question number 5 was in your homework and question number 7 will be in your homework, and I will tell you the question number 6. So the question number 6 is, a square shaped photograph has to be framed. Right? A square shaped photograph has to be framed. Let's say this is a photograph of a person which has to be framed. Right? This is a photograph which has to be framed. Now find the length of the frame if one side of the photograph is 25 centimeter. If one side is 25 centimeter, then tell the length of the frame. You have to tell the length of the frame. If one side is 25 centimeter, then the other sides are also of 25 centimeter, because this photograph is square shaped. If I named it A, B, C and D, then if AB is 25 centimeter, very good everyone. Now BC is of how many centimeter? BC कितने सेंटीमीटर की होगी? केशव बेटा BC कितने सेंटीमीटर की होगी? वेरी गुड. DC is of 25 सेंटीमीटर. चलो DC हमारा अपोजिट साइड है तो हमको पता चल गया 25 सेंटीमीटर की होगी. देन BC is of also of 25 centimeter, because it is a square and all sides are equal in square. It is also a 25 centimeter. Now next is 25 centimeter. This one is also 25 centimeter. Now all the sides we know of the square shaped photograph. We all know the sides of the. Now we will learn what is the perimeter. What is the perimeter? Perimeter का फॉर्मूला हमने क्या लर्न किया है? We learned the basic. The basic said the sum of all the line segments. What is basic said? For a perimeter of a polygon, the sum of all the line segments. So here the perimeter will be the sum of all the sides. What is the sum of all the sides? Let's see. 25 is the AB. So the first side I added here. इसके बाद में मैं क्या ऐड करने वाला हूं यहाँ पे? What will I add here? I will add again the next side. That side is of 25 centimeter. Next side क्या है? 25 सेंटीमीटर है. उसके बाद में क्या है? उसके बाद में भी क्या हमारे पास? सेम साइड है. सर सेम साइड है. This is also of 25 centimeter. Very good. What is the next side? Next side is of the 25 centimeter. All the sides are 25 centimeter. All the four sides of this polygon is of 25 centimeter. So the total is 100. So the total is 100 centimeter. So the total length is 100 centimeter. This is by the basic sum of all the line segments for a polygon. Now we will do with the formula. अगर हम formula से करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आना चाहिए. The perimeter of a square is is equals to 4 into side. यही होता है बेटा 4 into side. कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ रहे होंगे? 4a है ना, 4a भी पढ़ रहे होंगे, और कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ रहे होंगे? 4 multiply by a. This a is side here. This a is a side here. Okay, now we have to just multiply 4 multiplied by a side. What is the side here? जल्दी से बताएंगे बेटा. What is the side of this square shaped photograph? बेटा very good. चैट में जल्दी से लिख देंगे. The answer is 25. The side is of 25. So the complete perimeter, the complete length of this
framed photograph is 100 centimeter, right? So आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. एंड अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो आप विदाउट फॉर्मूला भी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, सारे पॉलीगन्स के क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा विद दिस फॉर्मूला. पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज द सम ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स. सिर्फ एक फॉर्मूला आपके सारे क्वेश्चन करवा सकता है, नहीं तो आपको स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के लिए अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना बेटा. दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लर्न करो या फिर सिर्फ एक ही फॉर्मूले से अपना सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये आपके ऊपर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 7 किस में है बेटा? होमवर्क में है. पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग एक बार ट्राई करो खुद से क्वेश्चन को, फिर पीडीएफ से देख लेना कि वो सही है या नहीं है. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर और द एक्सरसाइज 8.8. इफ यू नो और स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, अगर आपको ये बात पता होगी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, राइट? आपको ये बात पता होनी चाहिए, हर एक बच्चे को ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है. 2 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ ये पता होने पर कंप्लीट हो जाते हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. ओके, चलो हम यहां पर आते हैं वापस से. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और यू कैन से अ पॉलीगन. द पॉलीगन हैज इट्स बाउंड्री. सो दिस इज द बाउंड्री, right? A, B, C and D. The boundary जिसके ऊपर हम दौड़ते हैं, ठीक है? अगर आपने देखा होगा कि आप यहां दौड़ रहे हो, चल रहे हो, इस बाउंड्री पे चल रहे हो, ठीक है? इस बाउंड्री पे ऐसे चलते 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 और वापस A पर आ गए. If you run on the boundary, then this boundary, the total length of the boundary is called perimeter. आप सिर्फ बाउंड्री पर चल रहे हो तो उसकी लेंथ क्या होगी? पेरीमीटर होगी. सिर्फ बाउंड्री पर चल रहे हो तो, है ना? बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं. लेकिन एरिया क्या होता है? जिस बाउंड्री पे आप चल रहे थे उसके अंदर जितनी भी जगह है, ये जितनी भी जगह है हमारे पास, इस बाउंड्री ने जितना भी एनक्लोज कर दिया है एरिया को, है ना? इसी एरिया को तो एनक्लोज किया है इसने. बेटा देखो, क्लोज्ड और एनक्लोज्ड में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है? आप लोग अपनी इंग्लिश वाली मैम से पूछ सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एनक्लोज, ठीक है? तो अभी इस बाउंड्री ने क्या एरिया को एनक्लोज किया है? इस एरिया को एनक्लोज कर दिया, जो मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिया है ना? इस एरिया को एनक्लोज कर दिया है. तो ये जो ग्रीन बाउंड्री, ब्लैक बाउंड्री ने, ब्लू एंड रेड एंड ब्लैक बाउंड्री ने जो एरिया को कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे. जो अंदर एनक्लोज हुआ है वो हमारा एरिया है. और जो बाउंड्रीज हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को टोटल लेंथ, बाउंड्रीज की टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, है ना? पेरीमीटर बोलेंगे बाउंड्री की पूरी. अपने आप देखो, एक थ्रेड लो, है ना? एक थ्रेड लो और उस थ्रेड को आप क्या करो? इसके चारों तरफ ऐसे रखते जाओ और उसकी लेंथ देखो थ्रेड की कितनी होगी. कोई भी एक स्क्वायर बनाओ अपनी कॉपी में, है ना? और एक रेक्टेंगल बनाओ अपनी कॉपी में, और एक आप ट्रायंगल बनाओ, और आप क्या करोगे? एक थ्रेड लेकर उनके चारों तरफ रख दोगे, ऐसे करके एक थ्रेड रख दोगे और दूसरा थ्रेड यहां रखोगे और तीसरा थ्रेड यहां रखोगे, ठीक है? और इन तीनों थ्रेड की लेंथ देखो किसकी लेंथ ज्यादा आती है. जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसी का पेरीमीटर ज्यादा होगा. वैसे ही हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर की बात करेंगे, और तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? बाउंड्री की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? बाउंड्री की बात कर रहे हैं. लेकिन एरिया की बात कर रहे हैं तो उस बाउंड्री ने कितने एरिया को कवर किया है कंप्लीटली. ये जो अंदर हमने इसको कवर कर लिया है ये हमारा एरिया हो जाएगा. सो द स्पेस एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया. अब एरिया किस चीज पे डिपेंड करता है? लार्जर साइज ऑब्जेक्ट हैव
ग्रेटर एरिया। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा। लार्जर साइज ऑब्जेक्ट विल हैव अ ग्रेटर एरिया। यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट, राइट। हम स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं बेटा एरिया के यूनिट के लिए। इट मींस इफ यू हैव एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, यू कैन राइट इन बोथ द फॉर्म्स। ओके, आप दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं इसको। अब हम पेपर ग्रिड को कैसे यूज करते हैं? इन योर सिलेबस देयर इज अ पेपर ग्रिड टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पेपर ग्रिड का यूज करना है, और मैं आपको समझाऊंगा अभी कि हम पेपर ग्रिड को कैसे यूज करते हैं एरिया को फाइंड करने के लिए। हमें 4 क्राइटेरिया चाहिए। वी नीड ओनली 4 क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया इज कंप्लीटली कवर्ड स्क्वायर। अगर एरिया ने पूरा स्क्वायर को कवर किया है, कंप्लीटली कवर्ड स्क्वायर, राइट, कंप्लीटली कवर्ड स्क्वायर किया है, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? पूरा 1 काउंट करेंगे। दिस इज 1 काउंट करेंगे, राइट। आप लोग ध्यान से देख रहे हो। अगर एरिया में एक स्क्वायर कंप्लीटली कवर हो रहा है तो हम उसको 1 काउंट करेंगे। बट दूसरी चीज क्या है? इफ द स्क्वायर इज एग्जैक्टली कवर्ड हाफ, अगर स्क्वायर को एग्जैक्टली हाफ कवर्ड किया गया है, अगर स्क्वायर को एग्जैक्टली हाफ कवर्ड किया गया है, तो हम इसको कितना काउंट करेंगे? हाफ काउंट करेंगे। अरे भाई, काउंट ही हाफ करेंगे, क्योंकि इसको कवर्ड हाफ किया गया है तो हाफ काउंट करेंगे। अब कभी कभी क्या होगा कि इसको मोर देन हाफ काउंट किया जाएगा। देखो, मोर देन अगर हाफ, अगर मान लो ये मोर देन हाफ अगर ये कलर्ड है, तो हम इसको क्या काउंट करेंगे सर? मोर देन हाफ कवर्ड है तो हम इसको 1 काउंट करेंगे। मोर देन हाफ कवर्ड है तो क्या काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे। और लेस देन हाफ कवर्ड है सर, तो लेस देन हाफ कवर्ड है तो हम इसको क्या काउंट करेंगे बेटा? जल्दी बताओ। वी विल इग्नोर इट। ओके, लेस देन हाफ के लिए वी विल इग्नोर इट। ओके, लेस देन हाफ के लिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, अगर हमें कंप्लीटली कवर्ड है, कंप्लीटली कवर्ड, तो हम इसको एज अ 1 काउंट करेंगे, है ना। कंप्लीटली कवर्ड है तो हम इसको 1 काउंट करेंगे। हाफ कवर्ड है तो हाफ काउंट करेंगे, राइट। और अगर मोर देन हाफ कवर्ड है तो मोर देन हाफ कवर्ड है तो हम इसको एज अ 1 कंप्लीट काउंट करेंगे, है ना। मोर देन हाफ कवर्ड है तो हम इसको कंप्लीट काउंट करेंगे। ये लिख लो बेटा आप कहीं भी। और अगर लेस देन हाफ है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, 0 लिख देंगे, 0 एरिया काउंट करेंगे। ठीक है, आप ये बना सकते हो अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। 4 स्क्वायर बना लो, है ना, और कंप्लीट स्क्वायर को फिल करके पेंसिल से उसके नीचे 1 लिख लो, हाफ स्क्वायर को फिल करके हाफ लिख दो, और मोर देन हाफ को फिल करके 1 लिख दो, और लेस देन हाफ को काउंट करके हम लोग 0 लिख देंगे। ओके, और फिर इसके बाद में क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? टोटल कर देंगे कि हमारी यहां पे टोटल कितना हो गया है, टोटल कितने हमने स्क्वायर्स को कवर किया है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट इज सेइंग इफ द फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया, अंडरलाइन द वर्ड अप्रोक्सीमेट एरिया। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जो हमें फिगर्स नीचे दिए हैं उनका हमें एरिया फाइंड करना है। टेक द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर टू बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरलाइन द वर्ड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। जल्दी से अंडरलाइन करेंगे। 1 स्क्वायर
सेंटीमीटर। ओके, नाउ लर्न हाउ टू डू। नहीं बेटा, बुक में नहीं कर, बुक में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे बुक में? बुक से सिर्फ काउंट करना है ना, मैं आपको काउंट करना सिखा दूंगा, हाउ विल यू काउंट, देन आप अच्छे से कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो हमें एक ग्रिड बनानी है पहले, तो जैसी बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 and 7, right? 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, I draw the, मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे ग्रिड को, 7x7 का आपका ग्रिड है, एंड इन इट यू हैव अ फिगर ऑफ स्क्वायर शेप. So 1 2 3 from this point, and 1 2 3 1 2 3 1 2 3 to this point, right? And 1 2 3. Okay, 1 2 3 इसी के नीचे है. So you have to join them now. I will join with the help of scale. देखो बेटा, बोर्ड पर ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, तो आप अच्छे से कर पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा कम होगी. So this is your square, you can see in your book also. आप बुक में भी देख सकते हो इसको, है ना. अब हम काउंट करेंगे कंप्लीट स्क्वायर्स, है ना. सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कितने कवर हो गए हैं, है ना. सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर, द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर. तो आप देखो बोर्ड पर देखेंगे सभी लोग कि कंप्लीट स्क्वायर्स कितने काउंट हुए हैं. बेटा सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, कहां गए सभी लोग, बोर्ड पर देखो, इधर देखो बोर्ड पर. अभी कॉपी या बुक में नहीं देखना, प्लीज डू नॉट सी इन योर बुक और कॉपी, प्लीज सी ऑन द बोर्ड. बेटा बोर्ड पर देखो, तो हमारा पहला कंप्लीट स्क्वायर देखो, ये कंप्लीट स्क्वायर है पहला, है ना, फर्स्ट स्क्वायर, तो हमने इसको 1 बोल दिया. ऐसे ही 2, ये वाला सेकंड स्क्वायर है, ये कहीं से भी कट नहीं हुआ है. वैसे ही ये थर्ड स्क्वायर है. बेटा बोर्ड पर देखो मैं कैसे काउंट कर रहा हूं, कौन से वाले स्क्वायर्स को मैं कंप्लीट स्क्वायर बोल रहा हूं, प्लीज बोर्ड पर देखो. और इसके बाद में फोर्थ वाला स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर 5 6. उसके बाद में हम आ जाते हैं 7th स्क्वायर, 8th स्क्वायर, 9th स्क्वायर, 10th स्क्वायर, 11th स्क्वायर. मैं काउंट करवाऊंगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, तो गलती नहीं होनी चाहिए. देखो 12 स्क्वायर कैसे हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स. सो 12 स्क्वायर्स आर कंप्लीट. ओके, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ कि आपको स्क्वायर्स काउंट करने में प्रॉब्लम आ रही है. किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ कुछ कर नहीं करना है, ऐसे स्क्वायर जो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे, कंप्लीटली कवर्ड है. तो हमारे पास ऐसे कंप्लीटली स्क्वायर कवर्ड कितने हैं, 12. यू कैन काउंट, यू कैन ऑल्सो काउंट इन योर बुक, आप अपनी बुक में भी काउंट कर सकते हो. वेरी गुड. अब हम काउंट करेंगे हाफ कवर्ड स्क्वायर, हाफ कवर्ड स्क्वायर. ओके, अब हम हाफ कवर्ड स्क्वायर्स को काउंट करेंगे. लेट्स काउंट, लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग. सो दिस वन इज 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 एंड 12। ये हाफ कवर्ड है ना, जो रेड से मैंने मार्क किए ये हाफ कवर्ड है। सो दीज आर द 12, ये भी कितने हैं 12 है ना, दीज आर द 12। अभी मैंने क्या बोला था, जो कंप्लीटली कवर्ड है उसको हम 1 मानेंगे, है ना, उसको तो 1 बोलेंगे कि ये तो कंप्लीट है, हमारे पास पूरा है 1 है। और जो हाफ कवर्ड है उसके आगे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम हाफ मानेंगे, है ना, इसको हम हाफ मानेंगे। अब मोर देन हाफ कवर्ड, सर यहां तो सारे काउंट हो गए, मोर देन हाफ वाला कोई है ही नहीं, है ना, मोर देन हाफ वाला भी नहीं है, कोई लेस देन हाफ वाला है, लेस देन हाफ वाला भी नहीं है, लेस देन हाफ वाला भी कोई भी नहीं है, राइट, दोनों में से कोई भी नहीं है ना। हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12, वेरी गुड, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12, ये तो सबको आना चाहिए। अब मुझे बताओ 12 मल्टीप्लाई बाय हाफ, अच्छा 12 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दित्या का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहां हैं, 12 का हाफ करो बेटा, अर्णव का आंसर आ गया, बाकी बच्चे कहां हैं, बाकी बच्चे कहां पर है, प्रांशु का भी आंसर आ गया, माधव का आ गया, तनिष्क का आ गया, वेरी गुड, अतर्व का आ गया, अभिनव वेरी गुड, छवि, माधव, नैतिक वेरी गुड, मतलब सबको आता है, ईशान भी वेरी गुड, देवांग, समर्थ वेरी गुड, ओहो सबको आ गया, संयम वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नाउ टोटल, इसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में क्या आएगा आंसर, नाउ ऐड देम, सो आंसर विल बी 18। सिर्फ 18 लिखेंगे क्या, क्या हम सिर्फ 18 लिखेंगे, नहीं, हम क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके क्वेश्चन में जो मैंने अंडरलाइन करवाया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है, जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि आपका जो एक बॉक्स है, आपका जो 1 बॉक्स है उसकी वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स की वैल्यू है, एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, इसलिए वो वहां पे दे रखा है। ओके नाउ अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। द लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे सभी के सभी स्क्वायर्स आपको कंप्लीटली फिल या हाफ फिल नहीं मिलेंगे, यहीं पे आपको मिलेंगे मोर देन हाफ और लेस देन हाफ, है ना, यहीं पे आपको इसी पार्ट में मिलेंगे। लेट मी काउंट नाउ, अब मैं काउंट करने वाला हूं, हाउ मेनी ऑफ यू गेट द कंप्लीटली स्क्वायर, आपको कितने कंप्लीट स्क्वायर मिल गए हैं, जल्दी से बता दीजिए सर को। हाउ मेनी स्क्वायर्स यू गेट द कंप्लीट स्क्वायर्स, अर्णव सूरी गेट 18, ओके, अर्णव सूरी गेट 18, छवि गेट 19, लेट्स सी हाउ मेनी कंप्लीट स्क्वायर्स वी हैव, मोहिता गेट 18, ओके, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So the complete squares are 18. सभी लोगों को 18 मिले, यस, जिनको नहीं मिले प्लीज दोबारा काउंट कर लेंगे, है ना। 18 स्क्वायर्स आर वी हैव। नाउ हाफ कवर्ड स्क्वायर, हाफ कवर्ड स्क्वायर, हाफ कवर्ड कितने कितने मिले सबको, सभी लोग बताएंगे, ओके। सम ऑफ अर्णव गेट 8 और बाकी दित्या को 11, तासी को 10, देखो छवि को 8 और तासी को 10। ध्यान से देखो बेटा, आप जिनको 8 से 8 ही मिलेंगे, हमको हाफ कवर्ड कितने मिलेंगे 8 मिलेंगे। लेट्स सी, सो दिस वन इज द फर्स्ट हाफ स्क्वायर, सेकेंड हाफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ओके, एंड दिस वन इज 8। इसके अलावा जो भी है आप ध्यान से देखो, आपके पास 8 आ गए, इसके बाद में ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है ये मोर देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है, ये मोर देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है, ओके। ये मोर देन हाफ है इसलिए हम इसको हाफ में काउंट क्यों करेंगे, है ना, मोर देन हाफ को हम हाफ में काउंट नहीं करेंगे, ओके। अब हम काउंट करेंगे, अब हम काउंट करेंगे
more than half, more than half. How many of you get more than half? कितने बच्चों को more than half मिल गए हैं? more than half कितने बच्चों को मिले हैं? जल्दी से बताएंगे बेटा. more than half कितने बच्चों को मिल गए हैं? more than half देखते हैं. we get more than half. one is here and one is here. we get two more than half, है ना. two more than half मिल गए हमको. and less than half. अब हम less than half के बारे में बात करेंगे. less than half. less than half का वर्ड कितने हैं? we get one here and one here, so we will get two. तो सभी लोगों को पता है if completely square covered है तो हम उसमें मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, और हाफली कवर्ड है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और मोर देन हाफ है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन हाफ है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अगर कंप्लीटली कवर्ड है तो 18 में 1 का मल्टीप्लाई करो क्योंकि कंप्लीटली कवर्ड है. हाफ कवर्ड है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. मोर देन हाफ है, एक से आधे से ज्यादा है तो उसे हम कंप्लीट मान लेंगे, आधे से ज्यादा है तो हम उसे कंप्लीट मान लेंगे, और लेस देन हाफ है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर नाउ. देखते हैं. दिस विल बी 18, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 0. तो टोटल करेंगे. अभी हम इनको टोटल कर देंगे एंड आंसर विल बी 24, एंड द आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर. And C and D is for revision. We will not do the C and D part in the copy. Thank you and have a nice day, beta. Be safe at your home.